Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. How are you, Shreya? I'm good, sir. I'm doing well. Okay. I could not upload the video and material today. I will do it. Okay. Okay, sir. Because I was busy with some interviews. Now, we have completed measure of central tendency and some part of the measure of dispersion, the spreadness. Yes, sir. So in it, Scatteredness. No. scatterness we have finished, spreadness we have finished. Now we have to start the scatterness. What is scatterness? We understand that. And we have also covered some practical part of our basics, which was the vector. Okay. Yes, sir. So vector we have completed. Now we start today list. Okay. Yes, sir. So we are starting with the measure of dispersion. Okay. So let me share my screen with you first. So we have a fundamentals. Okay. No, we have to first cover that theory. Just a moment. That pen does. Okay. So in are you getting my screen? Yes, sir. Measure of dispersion. We have covered range, coefficient of range, interquartile range, semi-interquartile range. Now we will see the scatterness. In scatterness, we will see first mean absolute deviation. Okay. So I explain you this.
Okay, these are our data points, suppose hypothetically, and these are our x1, these are our x2, x3, x4, x5, xn. We have n data points. What it? Now, we know that in the spreadness, we have just two specific point. Dispersion, you have deviation between two, your distance between two specific point, like the minimum and maximum, first quartile, third quartile. But here the deviation of each data point from measure of central tendency. What does it mean? Deviation of each data point from measure of central tendency. Okay. So how many central tendency we have? 3. 3 central tendency. So we may have 3 mean absolute deviation. What it? So first I explain. Here is somewhere our mean. Here is somewhere our median, and this is our Z mode. Got it? Understand? So now we see what we are doing. We want to see the deviation of each data point from mean. Got it? So what we do? This distance we will take. Okay. Then this distance. Then from every data point we will see the deviation through mean. Understand? Got it? Every data point, not. Understand now, Surya? Yes, sir. ना कि हम हर डेटा पॉइंट से हर डेटा पॉइंट का सॉरी वो मीन से डेविएशन देख रहे हैं, कितना डिस्टेंस, कितना डेविएट हो रहा है वो डेटा। तो यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा, एल्जेब्रिकली यदि लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डेविएशन होगा। आई इज 1 to n। हाँ जी, बोले रिया, Yes, sir. है ना? xi minus x bar, this is the deviation distance. Yes. Yes, sir. And what we do, there may be some values may be greater than mean, some may be less than mean. It happens. Huh? Yes, So sir. sometimes we will get positive, sometimes we will get negative, or not. Yes, sir. When you take the deviation from actual mean and you get the summation of this, then you will get 0 always. Got it? It will always 0. You can try it today. This is your homework. Take a small data and take the mean of that data. Okay. And then you deviate the data. Got it? And take the summation. You always get 0 through the actual mean. So this will not beneficial. It is always 0. So what we have to do now, we do one thing. We will take the absolute values. Got it?
So this will not equal to 0. So we negative values we have converted in positive. Yes, sir. Absolute means, and we will get some value. So how many deviations we will get? N deviation, because we have n data points. And this summation of all deviations we divide by n. So what is this? This is the mean of deviation. Got it? Haji, bole. Yes, sir. This is the mean of deviation. So it is called the mean absolute deviation, because we have taken the absolute value. So this is the absolute deviation, and we are taking divided by it by n. So it is called the mean of absolute deviation. Does that make sense to you? Yes, sir. So we get the average deviation now. Now we have the various deviations, many deviations, and we add on all and we divide it by n. We are getting the average deviation. Understand how averagely your data is deviated from central tendency? Does that make sense to you now? Got it? So it is denoted by delta x bar. Got it? Any doubt? No, sir. Now, we may also take the deviation from median or not. Okay. So at that moment, what will happen? Understand? So this absolute deviation from median, but it is called the mean absolute deviation. Everything is mean absolute. We are taking the mean of absolute deviation. Absolute deviation is taken from mean, maybe taken from median, and maybe taken from mode. Got it? We could also take from the mode deviations. So at that moment, the formula will like it. Xi minus j over n I is equal to 1 up to n delta z. Does that make sense to you now? Okay. So we have 3 mean absolute deviation made. If I write made in some research paper, is 37. Can you guess from which center tendency I have got this mean absolute deviation? If I write the made. No, it will be hard to guess from which We it is could not coming. we could not guess from which center tendency we have taken the deviations. Got it? So this was the first demerit. What the first demerit? We don't have any specific central tendency, fixed central tendency by which we have to take the deviation. We have all three. Is it clear? So the first demerit of this. Sir.
3 डिमेरिट्स हैं इसमें। दूसरा डिमेरिट्स क्या है कि एल्जेब्रिकली it is wrong to convert, it is wrong to take the absolute value. कैसे होता है बेटा एल्जेब्रिकली? देखो यदि -5 है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5, और 5 भी होगा 5. तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 5। गॉट इट? समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये न्यूमरिक है, ये अर्थमेटिक है। अब एल्जेब्रा की बात करें, मान लो मेरे पास ए है 5, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लूंगा तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, यही होगा बेटा। व्हाट डू यू से? Yes, sir. यदि मैं माइनस लूंगा तो वो भी 5 होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, पर यदि मैं -a है ना, और यहां पर मेरा प्लस है, देन व्हाट विल हैपन यू विल सी। है ना, तो -a का क्या होगा बेटा? सर वही होगा 5. ए, Mod 5. ए होगा ना, हाँ. और ए का वैल्यू क्या आएगा बेटा इससे? 5. नहीं, होगी ना, ये -a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू -5 नहीं होगा यहाँ पर? -a is equal to 5, you multiply minus both the sides, so minus into minus it will get positive and this will get negative or not? क्या बोलते हैं? Yes, sir. रिया आया समझ में? Yes, sir. कोई भी चीज समझ में नहीं आए छोटी से छोटी चीज पूछा करो आप। अब ये Yes, ए का sir. वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? -5। तो मैंने तो एब्सोल्यूट लिया, एल्जेब्रा, ये एल्जेब्रा है। यदि हम अल्फाबेट्स में मैथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द एल्जेब्रा। एक्स वाई है ना, a+b होल स्क्वायर, ये सब क्या होता है बेटा? एल्जेब्रा होता है। तो एल्जेब्रिकली इट इज रॉन्ग टू यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू, है कि नहीं रॉन्ग भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए था? Positive value. हाँ, इज इट क्लियर नो? डाउट? So no doubt. है ना? Yes, तो ये sir. दूसरा डीमेरिट था। तीसरा डीमेरिट जो था दो तो हुए, यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में था। देखिएगा, ए बी 3 सेक्शन है और ये हमारे बच्चों के मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स, है ना? तो मान लीजिए इस बच्चे के, इस ए सेक्शन के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 45 हैं। गॉट इट? यहाँ के एवरेज मार्क्स 68 हैं
और यहाँ के एवरेज मार्क्स 54 है। गॉट इट। और इसका जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है पहले वाले ये सेक्शन का, वो है 7। सो 7 वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसी आएगी वैल्यू? हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है। व्हाट इट है? यस पॉजिटिव आएगी। तो यदि मैं वो एवरेज डेविएशन का बार इस पे लगाऊंगा तो वो कैसा होगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में 7। व्हाट इट मतलब एक ही तरफ डेविएट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट। पेंडुलम क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता? तो डेविएशन भी दोनों डायरेक्शन में होगा कि नहीं? होना चाहिए है भाई। मीन के अपर साइड भी होगा और लोअर साइड भी होगा एवरेज डेविएशन। क्या बोलते हो? यस तो इसमें यूनि डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है। -7 नहीं आ रहा है, आ रहा है एक्चुअली आना चाहिए था ऐसा, +-7। इधर भी डेविएट, इधर भी डेविएट 7 पॉइंट। एवरेज डेविएशन जो है 45 तो मीन है, और मीन से जो डेटा एवरेजली डेविएटेड है वो 7 पॉइंट्स। ओके, व्हाट इट। यस सर मान लीजिए यहां पर 68 में ये डेविएशन हो जाए हमारा 15। क्या है? 15। तो और इसमें हमारा डेविएशन है 3। तो आप एक चीज बताओ कि कौन सा सेक्शन ए बी और सी में कौन सा सेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट है? बताओ। सी। करेक्ट रिया। सीरिया समझ में आया? डेविएशन जिसका यस कम सर होगा वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें अधिकतर वैल्यू मीन के आसपास ही होंगी। गॉट इट। कंडेंस डेटा होगा। यस अंडरस्टैंड है ना? हाँ भाई श्रेया। यस सर हाँ, तो ये सब चीजें हमारे एनालिसिस का पार्ट होती हैं, यही सब चीजें हमें ऑब्जर्व करना रहती हैं कि भाई डेटा का डेविएशन कैसा जा रहा है ना? डेटा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट डेटा जो होता है वो कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छी बात है इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो। पर जब हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है हमें कंसिस्टेंट डेटा। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं मम्मास बॉय। है मम्मास बॉय का मतलब क्या है? मम्मी का बेटा, मम्मी का लाडला। बड़े सीधे होते हैं। तो उनके बारे में आप कुछ ज्यादा प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ना। कर सकते हैं? जो लोग जो बच्चे लड़के ज्यादा एक्टिव हाइपर एक्टिव होते हैं, फलाना कर रहे हैं ठिकाना कर रहे हैं, उनके बारे में आप ज्यादा चीजें गेस कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इट क्योंकि वो मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। और ये जो दूसरे तरह के बच्चे हैं उन्हें बस स्कूल कॉलेज आना घर जाना, ज्यादा उनका दायरा नहीं होता है, उनके बारे में ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? वो अपनी लाइफ को कंसिस्टेंटली जी रहे हैं एक लिमिटेड दायरे में। और दूसरे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा आवारा टाइप है, वो वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल है मतलब उनमें वेरिएशन है, उनकी एक्टिविटी में वेरिएशन है, तो उनके बारे में बहुत सी जानकारी आप उनमें उनकी जानकारी बहुत ज्यादा होगी, है ना? वो सिगरेट भी पीता, वो दारू भी पीता, साला वो नशा भी करता, फलाना ठिकाना है। लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है।
और फ्लड भी करता है और फलाना भी करता है। तो वी आर गेटिंग द मोर एंड मोर इंफॉर्मेशंस वी कुड गेट ऑफ ए व्हाट थिंग, जहां वेरिएंस ज्यादा हो ना, डेटा में डेविएशन ज्यादा हो, तो हमारे को ज्यादा पैटर्न पता चलेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी। और जहां डेटा कंसिस्टेंट होगा हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा वो डेटा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. है Yes. ना? जस्ट अ मोमेंट, मैं आया जरा, मिल्क में ना आया। हाँ जी, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई क्यों हमें डेविएशन की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, उससे हम क्या समझते हैं। खाली मीन से तो हम कुछ नहीं समझ सकते ना। यदि हमारे साथ मीन के साथ डेविएशन है तो हम पता लगा सकते हैं डेटा से हम कितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। डज इट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. है ना? तो ये सब चीजें एनालिसिस में हमें ध्यान रखना रहती हैं, इन्हीं के आधार पे हम लोग एनालिसिस करते हैं बेटा। यूनिडायरेक्शनल है, मैंने बता ही दिया आपको कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इन तीन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए देखो क्या होता है बेटा, जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस होती है 5 साल में हर सब्जेक्ट्स की, है ना। तो जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कोई नया रिसर्च हुआ, रिसर्च पेपर तो लोग लिखते रहते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी होते हैं, पर वो चीज करिकुलम में इन्वॉल्व हो या ना हो, कोई नया एक्सप्लोरेटरी यदि मैं रिसर्च करता हूँ, नई चीज एक्सप्लोर करके लाता हूँ, और वो मेरा चीज जो है हाइपोथेटिकली प्रूव हो चुका है, और यदि वो एक्सप्लोर करके मैं कोई कंसेप्चुअल चीज लाया हूं, तो वो करिकुलम में इन्वॉल्व होगी उस सब्जेक्ट की या नहीं होगी, उस सब्जेक्ट का एक पार्ट बनेगी या ना बनेगी। कि सब्जेक्ट का यदि पार्ट बन जाती है वो, तो ज्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, वो कहीं कोर्स में भी जाएगी, सिलेबस में भी जाएगी, है ना। तो उसके लिए जिनेवा में कॉन्फ्रेंस होती है हर 5 साल, मतलब होती तो हर साल है, पर वो सब्जेक्ट का जो टर्न आता है हर 5 साल में आता है, कोई भी सब्जेक्ट। बहुत सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का होता है। तो जब ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को लाया गया और जब इसके पेपर्स प्रेजेंट किए गए, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो होती है उसमें बोला कि यार इसकी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि ये सभी एक्सपर्ट को भेजे जाते हैं, जर्नल्स पहले पब्लिश होते हैं, फिर वो एक तो आपने इंटरनेशनल जर्नल में या नेशनल जर्नल में पब्लिश किया, फिर वो उनका जर्नल जो होता है उसमें पब्लिश होता है, उसमें जब पब्लिश होता है तो एक्सपर्ट्स के पास पहुंचता है वो जर्नल्स रिव्यू के लिए। एक्सपर्ट जो हैं उस पर पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बनाए, तो भैया ये डीमेरिट्स है इसके अंदर, ठीक है, अपनी जगह ये उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट ही कर दिया। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यूज होता है, आज भी यूज होता है और होएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि यार कुछ स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब एक, तो उन्होंने क्या करा,
नाम ही स्टैंडर्ड डेविएशन रख दिया बेटा। अब जो पहली डिमेरिट थी, पहली डिमेरिट क्या थी बेटा? कोई स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं थी। यहां पर इन्होंने कहा कि हमेशा डेविएशन मीन से लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन और मॉड से नहीं लेंगे। क्लियर है जी? दूसरा पॉइंट, हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू से नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, जो एल्जेब्रिकली करेक्ट नहीं है, हमारे पास दूसरा तरीका है बेटा। -2 को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? Got it? क्या बोलते? Yes, sir. तो यदि मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू और नॉट, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। Got Yes, it? sir. तो वी आर टेकिंग द स्क्वायर इंस्टेड ऑफ। अब यदि मैं देखूं तो xi minus x bar, then I am taking the square and finally I am getting the summation, and then I am taking the mean divided by n. So it is the deviation. This is the mean of square of deviation. This is the mean of square. Yeah, this is the square of deviation or not? Yes, sir. So this is the mean of square of deviation, but I want the mean of deviation. So what I will do? I will take the square root of this one. Does it make sense to you? So this is the standard deviation, or it is represented by small sigma. Got it? And whenever you take the square root sign, then what will happen? Got it? Third, यूनिडायरेक्शनल के लिए हमारे पास ये हो गया प्लस माइनस साइन, बाई डायरेक्शनल कर दिया। Does that make sense to you? हाँ भाई, आप So लोग जवाब। why do we take square? Can you repeat the point? Why do we take the square? No, sorry, square root. Because it is the deviation of, this is the mean of square of deviation. This is the square of deviation. This is not the deviation. Got it? Okay. So we Okay. want the mean of deviation. So we are taking the square root of the deviation. Okay. Okay? Yes, Got it? sir. That's the point. Now we have a variance. Variance is nothing. It is the square of standard deviation. If we not use this square root, यदि remove कर दे, if you take the square root will remove. Okay, तो ये हो जाएगा. Okay, what it? This is the variance. Does it make sense to you? So why do we find variance instead of standard deviation? Variance is more logical. It is positive value always. Okay. वेरिएंस का एक जो मेन इंपॉर्टेंट है कि डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कर लेते हैं। मैंने जैसे भी करवाया था आपको, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से भी कंसिस्टेंसी पता चलती, कम होगा तो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा स्टेबल। बट यदि आपको कंपेयर करना है दो डेटा की कंसिस्टेंसी को, देखिए मीन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू देखी जाती है ना। गॉट इट? यदि मीन बहुत बड़ा होगा तो ये, यदि वैल्यू इससे बड़ी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? गॉट इट? क्या समझ रहे कि नहीं?
हाँ सर, समझ में आ रहा है। है ना? तो हमें इससे खाली, यदि मैं आपको ये बोलूं कि यार 3 और ये, तो मान लो कि जो 15 वाला डेटा है वो 1068 है, और उसमें 15 जो डेविएशन हुआ वो बहुत ही कम है यार, उसके हिसाब से, मीन के हिसाब से, है कि नहीं? व्हाट डू यू से? So can you repeat? देखिए, ये जो मीन आया 1068 आया, मान लो कितना आया हम्म, है, और उसके हिसाब से जो 15 डेविएशन है वो रेशियो बहुत कम है कि नहीं है? हाँ, और 54 के हिसाब से यदि मैं 3 लिखूं तो ये ज्यादा है कि नहीं है? हम्म, या 45:7 देखें तो ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट कौन सा डेटा कहलाएगा? ये कहलाएगा या ये कहलाएगा, बताओ? सी वाला कहलाएगा नहीं, इसी कंसिस्टेंट। को छोड़ देते हैं हम, ये सी को ले ही नहीं रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहा, हम ए बी की तो बात कर रहे ए, हैं। ये ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। अरे भाई तो 43 डेविएशन है, कम है ना, हैं? 7 है ना। पर उसको आप मीन के रेस्पेक्ट में देखिए क्या रेशियो आ रहा है। अच्छा, देखिए दोनों को डिवाइड करिए कैलकुलेटर, मोबाइल पे करके देखिए। करिए, बताइए भाई जल्दी। कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर लेके। क्या होगा भाई? 7 डिवाइडेड बाई 45। 0.15 155 0.15, और ये कितना होगा? 0.014। अब आप देखिएगा, ये रेशियो छोटा है या ये रेशियो छोटा है? कौन सा रेशियो छोटा है? सेकंड वाला। सेकंड छोटा है। तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। हम्म, तो खाली हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से, या दिस इज द कोफिशिएंट, है ना? कोफिशिएंट ऑफ मेड क्या होता है कि डेल्टा एक्स बार ओवर मीन, डेल्टा मीडियन ओवर मीडियन, डेल्टा जेड ओवर जेड, उसी सेंट्रल टेंडेंसी के रेशियो हम लेते हैं उससे, और उससे पता करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। पर यदि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है और हमें कंसिस्टेंसी मालूम करना हो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखता हूं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। और कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस होता है, that is the standard deviation over mean into 100. Got it? कई बार लोग परसेंट लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते। तो यदि हमें किसी डेटा की कंसिस्टेंसी पता करना हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही मेजर करेंगे, ना कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं करेंगे। गॉट इट? यस सर। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है इस डेटा की कंसिस्टेंसी मेजर करके बताओ, या स्टेबिलिटी या वेरिएबिलिटी, तीनों एक ही बात है। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ये सेम है, और इसका एंटी एनोनिमस जो है, एंटीनोम जो है वो है क्या? वेरिएबिलिटी। जो डेटा कम कंसिस्टेंट होगा वो ज्यादा वेरिएट, उसका वेरिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा वेरिएबल डेटा होगा, वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। गॉट इट? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। yes,
तो ये अपना था ओवरऑल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है। तो रिया, आपका मैनेजमेंट चल रहा है ना, अभी मैनेजमेंट कर रहे हो गया है? सर हो गया है। हो गया है। और श्रिया, आप भी डेटा साइंस कर रहे हो? सर MSBM कर रही हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। मास्टर इन बिजनेस में, उसमें ये है आपको डेटा साइंस और हाँ। डेटा एनालिटिक्स का पार्ट, या बिजनेस एनालिटिक्स का। आपने वहां भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा दोनों में, सर थोड़ा सा पढ़ा है, है ना? रिया, ज्यादा तुमने नहीं। भी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, यस तो कोर्स में सर। रहता है, यस सर, फर्स्ट सेम में पढ़ा। है ना? पर जो कंसेप्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं वो पहले आपके क्लियर थे, नॉट रियली। है ना? तो क्या होता है कि जो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है? और यहाँ जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, है ना? हमें डेटा को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, हम ये क्यों सब स्टडी कर रहे हैं? जब हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें एक्सप्लोर करने के लिए इन सब चीजों की, इन सब स्टैटिस्टिक्स से गुजरना पड़ता है ना? और इसके आधार पे हम डेटा को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यदि हम ये सब स्टैटिस्टिक्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम डेटा के नेचर को, उस वेरिएबल के नेचर और बिहेवियर को नहीं समझ सकते। व्हाट इट है? यस सर। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ भाई, हम इस तरह से डेटा के बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं, कैसे नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब ये अपन प्रैक्टिकल चालू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो होगा शेप ऑफ द डेटा। 3 चीजें होती हैं बेटा यूनिवायरेट एनालिसिस में, जो हम ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, 3 होते हैं। तो अभी अपन, ये पहला पार्ट हो रहा है अपना यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट से मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल वेरिएबल का, हर इंडिविजुअल कॉलम का नेचर और बिहेवियर को समझे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, और यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए हमें 3 चीजें रहती हैं। पहला तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तीसरा शेप ऑफ द डेटा। फिगर बनाएंगे विजुलाइज करके उसको समझना। तो ये तीनों चीजें हम लोग देखते हैं, तब हम उस वेरिएबल के बिहेवियर को समझ पाते हैं कि हाँ ये इसका ऐसा नेचर है, इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। ओके, यस सर। तो ये चीजें रहती हैं, तो इसको हम समझेंगे, है ना? जैसे एक परिवार में 8 लोग हैं, 8 का नेचर बिहेवियर अलग होगा होगा इवन ट्विंस होंगे तो उन ट्विंस का भी नेचर में डिफरेंस होगा, बिहेवियर, है ना? ऐसे ही डेटा में जितने कॉलम है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वो जो वेरिएबल्स हैं उनका नेचर हमें चेक करना रहता है। ठीक, कोई हाईली स्क्यूड होगा, कोई लो स्क्यूड होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव स्क्यूड होगा, कोई नॉर्मल डेटा होगा। ये सब चीजें हमने देखी। चलिए अपन आते हैं आर पे। हाँ, हम लोग लास्ट सेशन में, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, गेटिंग माय स्क्रीन, ओके? हाँ जी, स्क्रीन हाँ दिख सर, रहा है? मैं दे रही हूँ। हाँ ना, हाँ। बोला करो यार, तुम लोग टाइम बहुत लगाते हो, पता नहीं क्या। वो जब मैं व्हाइट बोर्ड पे होता हूँ तो वैसे भी आप लोगों के कैमरे ऑन नहीं करवा रहा हूँ, तो मुझे इंटरेक्शन तो पता चलता नहीं, तो कम हाँ ना तो बोलो तुम लोग, यस सर। है ना? नींद तुम्हारी हमारी उठती नहीं है यार, इतनी देर तक सो के उठ गए हैं क्यों? नहीं सर, खुल गए हैं। चाय वाय कड़क पी लिया करो सुबह सुबह। अब मैं यार 52 53 एज, मैं 5:30 बजे उठता, मेरे डेली सेशन होते हैं,
और सैटरडे संडे तो मैं पूरा बुक रहता हूँ सुबह से शाम तक, 5 से 6 सेशन होते हैं दिन भर, और हर जगह अलग चीज पढ़ा रहा हूँ, है ना। और कोई तैयारी नहीं, सब है, इतना एक्सपीरियंस है तो जो भी चैप्टर रहता है टॉपिक शुरू हो जाता हूँ मैं तो लेकिन। Yes. तो बी एक्टिव यार, तुम लोग तो यंग हो। Yes, sir. तो आज हम बात करेंगे लिस्ट की। ओके, तो मैं सबसे पहले ये ग्लोबल एनवायरनमेंट्स में से हटा देता हूँ, कंट्रोल एल करूंगा। कंट्रोल एल नोट कर लीजिए, कंट्रोल एल से कंसोल पे जितना लिखा है वो गायब हो जाता है। Yes, sir. कंट्रोल एल। आज हम बात करेंगे लिस्ट के। मैं नई स्क्रिप्ट ले रहा हूँ लिस्ट के लिए। लिस्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस है, फैक्टर अपन देख चुके हैं। लिस्ट का जो डीमेरिट है वो पहले देखें। डीमेरिट ये कि हम लिस्ट में कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। वेक्टर में कर सकते हैं, अपन देख रहे थे, 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, पर लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। लिस्ट को यहाँ हम कोई भी प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, एडिशन सबट्रैक्शन 2 लिस्ट को नहीं जोड़ सकते। लिस्ट को मर्ज कर सकते, जोड़ना अलग बात होता है कि उनके एलिमेंट्स जुड़े, एलिमेंट्स के बीच में अरिथमेटिकल ऑपरेशन वो लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिस्ट की जो मेरिट है वो क्या है, जैसे हमने एक वेक्टर बनाया था पहले, है ना, उस वेक्टर के अंदर हम दूसरा वेक्टर नहीं रख सकते, सब वेक्टर नहीं क्रिएट कर सकते, वेक्टर के अंदर वेक्टर, नॉट पॉसिबल। लिस्ट के अंदर आप सब लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप वेक्टर रख सकते हैं बहुत सारे, लिस्ट में आप मैट्रिक्स रख सकते हैं, लिस्ट में आप अरे रख सकते हैं, लिस्ट में आप डेटा फ्रेम भी रख सकते हैं, ढेर सारे। तो लिस्ट जो है वो हर चीज, हर डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. है ना, Yes, sir. हर डेटा टाइप को, इवन डेटा फ्रेम, बहुत सारी डेटा फ्रेम आप एक लिस्ट में रख सकते हैं। तो लिस्ट तो आप किसी भी चीज की बना सकते हैं ना, यदि अपन देखें प्रैक्टिकल। लिस्ट आप बना सकते हो घर की ग्रोसरी की, लिस्ट आप बना सकते हो फर्नीचर्स की, लिस्ट आप बना सकते हो व्हीकल्स की, है ना। लिस्ट तो आप किसी भी चीज की बना सकते हो। तो यही यहाँ पे लिस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं, फ्रूट्स की लिस्ट बनाता हूं। तो जैसे हम जब वेक्टर बनाते थे, तो वेक्टर जब बनाते थे तो सी लेते थे, कंबाइंड फंक्शन। यहां पर लेते हैं लिस्ट स्मॉल में। ये देखिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखिए। अब इसके अंदर हम लिखते चले जाएंगे। मैं लिख रहा हूं So सॉरी, आपने first अपनी inverted commas, you know. देखिए सिंगल ले लें या डबल डबल कोट्स लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये मैं लिस्ट बनाया हूं, बन गई लिस्ट, एनवायरनमेंट में आ गई। यदि मैं इसको यहां देखता हूं तो कैरेक्टर है, ये सब क्या है, चारों Character. एलिमेंट कैरेक्टर है। ठीक है, Hmm. गॉट इट। और यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं, देखिएगा, आपने वेक्टर का प्रिंट देखा था कैसा होता था, हॉरिजेंटल आता था वेक्टर का आउटपुट। यदि मैं एक वेक्टर बनाऊं, मैं फ्रूट नाम से बनाता हूँ, फ्रूट्स की जगह, क्योंकि नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ओवरलैप कर देगा। वेक्टर बनाया,
इसका प्रिंट दिखाता हूँ। दोनों प्रिंट में डिफरेंस दिख रहा है बेटा? Yes, sir. लिस्ट जो है उसका हर एलिमेंट एक सब लिस्ट होता है। बनाना एक सब लिस्ट है, मैंगो एक सब लिस्ट है, ऑरेंज एक सब लिस्ट है। एलिमेंट तो है ही, वो सब लिस्ट की तरह ट्रीट होता है। तो पहला सब लिस्ट, ये डबल जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, पहली सब लिस्ट, पहली सब लिस्ट का पहला एलिमेंट बनाना है। एक ही एलिमेंट है इसमें, हर एलिमेंट को ये सब लिस्ट बना रहा है। व्हाट इट? ये सेकंड सब लिस्ट है मैंगो, और उसका पहला एलिमेंट मैंगो है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है उसमें। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझ में आए। तीसरी सब लिस्ट, चौथी सब लिस्ट। व्हाट इट? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया थोड़ा सा? Yes, sir. अब मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ, किसमें? लिस्ट में। देखिएगा, क्लास चेंज कर दी उसने, बता रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्लास क्या है, पता हाँ। चल रहा है? हाँ, और मैं मैंगो। यहाँ नंबर डालता हूँ। अब मैं इसकी क्लास यहाँ देखते हैं अपन, फ्रूट की। जो फ्रूट है ये वैल्यूज दे रहा है, कैरेक्टर, पूरा क्लास कैरेक्टर, ठीक है? व्हाट इट? इसका क्लास कैरेक्टर। यदि मैं ये क्लास पूछूंगा, क्या बता रहा है? कैरेक्टर। और यदि मैं अब इसको प्रिंट Character. करूं, मैं वेक्टर को प्रिंट कर रहा हूं, देखिए क्या आ रहा है? कोट्स में आ गया कि नहीं? मैंने क्या कोट्स में लिखा था यहाँ? नहीं। तो वेक्टर में यदि आपका एक भी कैरेक्टर आ जाए, आपके सब न्यूमरिक नंबर है और एक भी आपने नंबर कोट्स में लिख दिया, या एक कोई भी लेटर लिख दिया कोट्स में, तो वो पूरा कैरेक्टर हो जाएगा, न्यूमरिक नहीं रहेगा। गॉट इट? Yes, sir. उसकी पूरी क्लास क्या हो जाएगी? कैरेक्टर हो जाएगी। लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में एलिमेंट वाइज क्लास बताता है, यहाँ कंप्लीट क्लास या यहाँ एग्रीगेट क्लास बता रहा है वेक्टर में। गॉट इट? Yes, sir. पूरा एग्रीगेट क्लास है कि उस वेक्टर का क्लास क्या है। लिस्ट में एलिमेंट वाइज क्लास बताता है। ये समझ में आया श्रेया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे नंबर की। कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम रख सकते हो, x1 x2 x3, मैंने L1 रख दिया। लिस्ट फंक्शन और 1, 5, 3, 6, ये एक लिस्ट बनाएंगे। अब L1 को प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो गया। गॉट इट? यहाँ तक सर समझ लेकिन में? सब लिस्ट बन रही है, लेकिन उसका मतलब क्यों बना रहे हैं? मैं बताता हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, और ये लिस्ट में मैं बहुत सारी अलग अलग तरह के चीजें लूंगा। पहला मैं ले रहा हूं एक इंटीजर वेक्टर। 4:8 क्या होता है? वेक्टर होता है कि नहीं होता है बेटा? Yes, sir. एक में ले रहा हूं कुछ नाम, ओके। एक में ले रहा हूं कंबाइन, व्हाट इट? Yes, sir. और एक में ले रहा हूं लॉजिकल। अब और इसी में मैं एक लिस्ट और ले रहा हूं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। और अब लिस्ट ले रहा हूं व्हाट इट? समझ लीजिए, Yes. ध्यान से देखें पहले इसको।
पहला इंटीजर है 4.8, दूसरा एक कंबाइंड वेक्टर है जो कि कैरेक्टर है राम और सीता, तीसरा एक पूरा न्यूमरिक वेक्टर है, चौथा एक लॉजिकल वेक्टर है, पांचवी एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में भी 2 आइटम न्यूमरिक और 1 आइटम कैरेक्टर है। समझ गए? अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं L2 देखता हूँ। देखिएगा यहाँ जो बात हो रही थी पहली सब लिस्ट, ये इसकी क्या कहलाई? पहली सब लिस्ट कहलाई। व्हाट इट? पहली सब लिस्ट ये है, पहला एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, 6 है, 7 8 है। ये एलिमेंट संख्या बताता है, जो यहाँ पहला एलिमेंट होता है उसका क्या इंडेक्स है वो बताता है। दूसरी सब लिस्ट राम और सीता है जो कि एक वेक्टर है, वेक्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा। तीसरी सब लिस्ट, चौथी सब लिस्ट, पांचवी जो सब लिस्ट है वो एक लिस्ट ही है, तो वर्टिकल प्रिंट हुई, हुई कि नहीं हुई? है ना? हाँ, तो वर्टिकल प्रिंट हुआ। तो यहाँ जो 2 बार 5 दिया है, तो पहला ये बताता है कि पांचवी सब लिस्ट यहाँ से चालू हो रही है ना? पांचवी यहाँ से चालू हुई, तो पांचवी सब लिस्ट का पहला जो सब लिस्ट है वो 1.5 है। गॉट इट? है ना? हमेशा वो एलिमेंट को सब लिस्ट मानता है। तो पांचवी सब लिस्ट के पहले सब लिस्ट का पहला एलिमेंट 1.5 है, पांचवी सब लिस्ट के दूसरे सब लिस्ट का पहला एलिमेंट 6 है, पांचवी सब लिस्ट के तीसरे सब लिस्ट का पहला एलिमेंट हरी है। व्हाट इट? अब मतलब ये है कि आप इसके अंदर भी, यहाँ पर भी ये भी सब लिस्ट है, ये भी सब लिस्ट है, मतलब आप उसके अंदर सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट, फिर सब लिस्ट, फिर सब लिस्ट कर सकते हो। सर वो कैसे होगा? इसमें एक और मैं सब लिस्ट डाल देता हूँ, सॉरी यानी ऊपर करना पड़ेगा। ये डाल दी, अब रन की, देखिए पांचवी सबलिस्ट, पांचवी सबलिस्ट की पहली सबलिस्ट, पांचवी सबलिस्ट की पहली सबलिस्ट की पहली सबलिस्ट का पहला एलिमेंट 1.5। गॉट इट? लिटिल बिट कंफ्यूज है ना? कंफ्यूज तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, 2-4 बार करके देखना पड़ेगा अपन को, जब अपन एक्सेस करना सीखेंगे तब मैं बताता हूँ, है ना? अभी एक्सेस करना नहीं सीखा, अब मैं एक्सेस करना बताता हूँ। पहले मैं आपको एक्सेस करना बताऊंगा फ्रूट्स में। फ्रूट्स में आपको ऑरेंज एक्सेस करना कैसे करेंगे? वेक्टर में कैसे एक्सेस किया था बेटा अपन? क्या करते थे एक्सेस करने के लिए? कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो क्या करा, बताएं? हम्म, ब्रैकेट लगाते थे और एलिमेंट का नंबर लिखते थे। हाँ, कौन सा ब्रैकेट लगता था? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, तो बोलना चाहिए, इतना टाइम लग गया यार। अपन को ऑरेंज करना है, क्या लिखूंगा? 3। देखिए, और 3 हो गया एक्सेस। गॉट इट? हो गया कि नहीं? सर हो गया। अब देखिए, हमने इस सब लिस्ट पे आता हूँ L2 में। L2 में मुझे एक्सेस करना है 23। क्या एक्सेस करना है बेटा? 23। 23 एक्सेस करना है। कैसे करूंगा देखिए, जो सब लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग में डबल ब्रैकेट में लिखूंगा। गॉट इट? यस सर। डबल स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी सब लिस्ट है बेटा? थर्ड है। थर्ड सब लिस्ट। 23 एक्सेस करना है। अब मैं एलिमेंट पहुंच गया, 23 मेरा फाइनल एलिमेंट है जो मुझे एक्सेस करना है, तो सिंगल ब्रैकेट लूंगा। कौन सा है बेटा? 3। 3 है। व्हाट इट? यस सर। आ गया? यस मान लो
आपको राम एक्सेस करना है, क्या लिखोगे बेटा, करके देखो। L2 डबल ब्रैकेट में 2 हम्म, 1 सिंगल ब्रैकेट में 1। बहुत सर सही। सर एल, अच्छा लिस्ट L2 हमेशा देना है अगर, वो तो लेना ही पड़ेगा ना, जिससे एक्सेस करो ऑब्जेक्ट अच्छा तो लिखना ही पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव, हाँ सॉरी जो वो तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, है अपना, उस ऑब्जेक्ट से ही तो हाँ एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो हाँ एक्सेस कैसे करोगे। यस। क्लियर। अब मुझे 6.7 नहीं, मुझे 6 एक्सेस करना है, ये वाला। क्या करेंगे, ये 6 एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। L2 डबल L2 ब्रैकेट में 5 हम्म 5 और फिर सिंगल डबल ब्रैकेट ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट 1 हम्म। सिंगल ब्रैकेट 2। ये कौन बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, श्रेया। किस श्री है। नाइस, बहुत। सिंगल ब्रैकेट में 2, करेक्ट। देखिएगा, सिंगल ब्रैकेट में, ये मेरा थोड़ा सा ब्रैकेट गड़बड़ बन गया भाई, ये ब्रैकेट यही बोला है सरिया तुमने, डबल हाँ ब्रैकेट सर। में 5, डबल ब्रैकेट में 1 और सिंगल ब्रैकेट में 2। हाँ सर। आ गया 6 एक्सेस हुआ रिया। यस सर। जब तक देखिएगा, पहला अपन ने जो 5 लिया ना, वो 5th नंबर की सब लिस्ट है ना। फिर इसके अंदर ये एक और सब लिस्ट है ना। यस पहली सर। सब लिस्ट ये है, दूसरी सब लिस्ट ये है। क्लियर हो रहा पॉइंट रिया। यस सर। तो 5 में पहली सब लिस्ट, अभी मैं एलिमेंट में तो नहीं पहुंच रहा हूं यहाँ, है ना। यस सर। तो तो जब तक सब लिस्ट चलती रहेगी तब तक डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, और जहां फाइनल एलिमेंट का आप सिलेक्शन लोगे, जैसे 6, तो वहां सिंगल ब्रैकेट आए। क्लियर। अब रिया, अब तुम बताओ, मुझे हरी को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करूंगा। सर पहले डबल ब्रैकेट में 6 हम्म और डबल सिंगल ब्रैकेट में 6। बताइए कितने हैं, सर 6 आएगा ना। क्यों आएगा। अच्छा वो उस लिस्ट में ही है हरी। हाँ ओके तो पहले तो 5, हाँ, देन देन सेकंड सिंगल ब्रैकेट में। जीत गए। हम्म ठीक है रिया। यस सर। How to access the element from list, now you could do it easily, यस सर। है ना। So I am not using here matrix array, because we have not covered that. We could also put the matrix in a list, we could also put the array in the list, we could also put the data frame in the list. Okay, we'll see it later. Got it. Now if you want to see here, you will see first is an integer, second is a character Ram Sita, third is numeric, fourth is logic, and fifth is list. So list of 3, 3 एलिमेंट है, पहला न्यूमरिक है, दूसरा पहला जो इसका जो है लिस्ट का सब लिस्ट में जो पहली तो इस लिस्ट में 2 है, एक तो वो अपना लिस्ट था और दूसरा अपना हरी था, और जो 2 में पहला वाला लिस्ट है उसमें 3 एलिमेंट है, तीनों न्यूमरिक है, और ये जो एलिमेंट है हरी है। तो लिस्ट में आप देखेंगे कि यहीं पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट कैसा है, क्लास क्या है उसकी। गॉट इट। अब हम मान लीजिए कोई लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 1 या फ्रूट है, ये सॉरी फ्रूट्स है, लिस्ट, इसको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूंगा देखिएगा, मैं फंक्शन चलाऊंगा, मैं फ्रूट्स को ही किसी भी नाम दे देता हूँ, एक्स नाम से सेव कर लेता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ।
फंक्शन है अनलिस्ट। क्या है? अनलिस्ट करना। किसको? फ्रूट्स को। व्हाट इट? फ्रूट्स अपनी लिस्ट है। ठीक है, अब मैं एक्स प्रिंट करता हूँ तो समझ में आ गया ये वेक्टर हो गया कि नहीं। क्लास चेक कर लेते हैं। कैरेक्टर क्लास होती है वेक्टर। व्हाट इट? हाँ Yes. जी, अनलिस्ट करना समझ में आ गया। हाँ. Yes, sir. इवन आप जो मैंने लिस्ट 2 बनाई उसे भी अनलिस्ट कर सकते हैं। मैं उसकी जगह V2 लिख देता हूँ, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना अपन। अनलिस्ट का मतलब होता है वेक्टर में कन्वर्ट होना। अनलिस्ट L2। ओके, और अब मैं V2 बताता हूँ। अब ये जो V2 होगा ना पूरा कैरेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर में तो पूरे एग्रीगेट क्लास बताता है ना, जो न्यूमरिक वगैरह भी होंगे सब वेक्टर हो गए होंगे। देखिएगा, हो गए। इसमें ना कोई सब लिस्ट, सब एक ही उसमें हो गए। ये कहाँ गया? खिचड़ी में। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया भाई? कंसेप्ट नहीं हुआ? Yes, सर sir. क्लियर हो गया. तो लिस्ट अपना कंप्लीट हुआ। Yes, sir. क्यों बेटा? लिस्ट में इतना ही था। लिस्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है, वो अपन बाद में देखेंगे कि कहाँ यूज होती, कहाँ नहीं होती। यूटिलिटी अभी नहीं बता रहा हूं मैं, यूटिलिटी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो डेटा टाइप, तो मैं नेक्स्ट अलग स्लाइड ले रहा हूँ बेटा, स्क्रिप्ट सॉरी अलग ले रहा हूँ। व्हाट इट? मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में। सर अपन हैश कब लगाते हैं? हैश कमेंट के लिए, मतलब ये आर इसको नहीं रीड करेगा, अच्छा. है ना। तो कमेंट यदि कोई लिखना है ना, जिसको हमें कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, कुछ कुछ भी आपको लिखना है XYZ कमेंट, तो जैसे मैंने ये आपको आज भेजूंगा, देखिए ये सब कमेंट है, पढ़ने के हैं। इसको आर से कोई, आर का कोई लेना देना नहीं है इससे। कमेंट टाइप है, मतलब कि ये लिखा हुआ है बस Okay. खाली। Okay. ये एक्शन में आएंगी सब चीजें जो बिना हैश के लिखी है ना। इस पे एक्शन लेगा आर। जो भी हैश लगा दिए तो आर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। Yes, sir. गॉट इट? तो ये कमेंट करके लिखा जाता है ना। यदि मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दूंगा तो रन करूंगा तो ये बोलेगा यार ये तो एरर है। Okay. तो इसको ध्यान नहीं देता आर। जब हैश लग जाता है तो इग्नोर कर देता है कि अरे ये किसी काम का नहीं। ठीक, मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं स्कूल हाँ में? तो पढ़ा है. पढ़ा था. तो मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ एलिमेंट, है ना, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो मैट्रिक्स जो है वो अरे है, एलिमेंट का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स में। ठीक है ना, यही होता है ना मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? Yes, sir. तो पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स कैसे बनता है इसमें। उसका सिंटेक्स क्या है। पहला मैट्रिक्स बना रहा हूँ M1। M1 इज द ऑब्जेक्ट नेम, और फंक्शन है जैसे लिस्ट में लिस्ट लिखते थे, इसमें मैट्रिक्स लिखते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है ना भाई। वेक्टर के लिए सी है, लिस्ट के लिए लिस्ट है, मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स है। गॉट इट? अब मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ये मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ 2/3 का बनाना चाहता हूँ। 2/3 का मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 2 रो और 3 कॉलम। कितने एलिमेंट होंगे? 6. 6 एलिमेंट। 2 इंटू 3 6। तो मैं 6 एलिमेंट का एक वेक्टर बना लेता हूँ पहले, है ना। पहला क्या सिंटेक्स है इसमें, आप देखेंगे कि यहाँ डेटा, फिर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, बाय रो फॉल्स, डायमेंशन नेम्स, ये इसका सिंटेक्स है ना। तो यदि हम सिंटेक्स देखें, मैं यहाँ से सिंटेक्स उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो आपके नजरों के सामने रहेगा।
देखिएगा, पहला डेटा, दूसरा नंबर ऑफ रो, तीसरा नंबर ऑफ कॉलम। बाय रो हमेशा फॉल्स होता है डिफॉल्ट में। और डायमेंशन नेम्स, डायमेंशन नेम्स में बताऊंगा अभी आपको, नेमिंग अभी मैंने नहीं बताया। मैट्रिक्स है, पहला मैं डेटा डाल रहा हूँ 6 एलिमेंट। ये डेटा है मेरा, कितने हुए? 5 हुए, 6 हो गए। अब मुझे दोनों लिखने की जरूरत नहीं है कि एन रो और एन कॉलम। मैं खाली रो लिख दूंगा तो कॉलम अपने आप डिसाइड हो जाएगा। यदि मैं 2 रो लिख रहा हूं तो वो अपने आप ले लेगा 3 कॉलम, ले लेगा ना। 6 एलिमेंट है, उससे हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। तो मुझे दोनों नहीं लिखना है एट्रीब्यूट, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं बेटा। अंदर जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और ये पूरा कहलाता है सिंटेक्स। ये पूरा क्या कहलाता है बेटा? सिंटेक्स। और ये कहलाता है एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ जो ले रहे हैं बाय एन रो, नंबर ऑफ रो 2, 2 रो ले रहे हैं बेटा, तो 3 कॉलम हो जाएंगे। और हमें नंबर ऑफ कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। और बस ये 2 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। बाकी जो आर्गुमेंट्स हैं वो डिफॉल्ट में आपको मिलेंगे, है ना। रिक्वायर्ड नहीं है, वो आप लिखें अपनी आवश्यकता के अनुसार तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ठीक है। अभी अपन आगे यूज करेंगे वो आर्गुमेंट्स, पर अभी नहीं कर रहे हैं इसमें। सर बायरो का मतलब क्या होता है? जो मैं बता रहा हूँ फॉर्म्स भाई, ओके। आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। पहले मैट्रिक्स देखिए, बन गया मैट्रिक्स 2/3 का। यस सर। हम्म देखिए, कॉमा के बाद वो कॉलम बताता है और कॉमा के पहले वो रो बताता है। तो पहली रो, दूसरी रो, है ना। कॉमा के बाद लिख रहा है तो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्लियर हुई यह पॉइंट? यस सर। अब बाय रो फॉल्स है, डिफॉल्ट में क्या है? बाय रो फॉल्स है। तो जो भी मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं ना, वो वर्टिकल लिखाएंगे कॉलम वाइज। 34, 21, 58, 82, 99, 22। समझ में आया बाय रो का मतलब? हाँ सर। फॉल्स है तो वर्टिकल जमेंगे ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ जमाता जाएगा। गॉट इट? यस सर। यदि मैं यहाँ पे बाय रो ट्रू कर दूं, कैपिटल टी लिखना है हमेशा। अब देखिएगा क्या होता है, देखिएगा अरेंजमेंट कैसे जम गई। रो वाइज जम गए, पहले कॉलम वाइज जमे थे, हैं? यस सर। अब रो वाइज जम गए। तो बाय रो का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ यस सर, हो गया सर। क्लियर। अब फोर्थ एंड लास्ट एट्रीब्यूट है इसका, डायमेंशन नेम्स। डायमेंशन में कॉलम के नाम देना और रो के नाम देना, दे सकते हैं। तो डायमेंशन नेम्स में डिम नेम्स। अब देखिए, आपको 2 वेक्टर यूज करने हैं इसमें, एक तो रो के लिए और एक कॉलम के लिए। क्या डेटा टाइप यूज करेंगे 2 वेक्टर यूज करने के लिए? सी। वेक्टर में वेक्टर रख सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं रख सकते। क्या यूज करोगे डेटा टाइप? लिस्ट। हाँ, लिस्ट में वेक्टर रखेंगे 2, एक रखेंगे रो के लिए, एक रखेंगे कॉलम के लिए। आप समझ में आए यूटिलिटी ऑफ लिस्ट? यस सर। कहाँ उपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब पहला मैं लिख देता हूँ R1। हमेशा कोट्स में लिखना है जब भी नाम रहते हैं तो, R1 और R2 रो। व्हाट इट? ये रो का हो गया, पहला वाला हमेशा रो का होगा, है ना। और दूसरा वेक्टर जो होगा वो कॉलम का होगा। ठीक है, C1, C2, C3। व्हाट इट? देख लीजिए ध्यान से। आ गए, नेमिंग हो गए बेटे।
So in this way, you do the naming of matrix. अब तो सर हमने एक ये चीज मिनट देख लिया है, सर एक मिनट वो कॉपी कर लूं। करिए बिल्कुल आराम से। आज रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा मैं, दोनों तीनों दिन की। सब आई ड्राइव आपको शेयर कर दूंगा मैं, सब पुराना मटेरियल भी, ये सब स्क्रिप्ट भी, पीडीएफ भी, सब। कल टाइम मिला नहीं मुझे। यस सर हो गया। हो गया। अब अपन जैसे लिस्ट में एक्सेस करा था एलिमेंट्स, इसमें हम एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो M1 स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। मान लो इसमें मुझे 99 एक्सेस करना है, तो इसमें दो डायमेंशन है हमारे पास। लिस्ट में तो एक ही डायमेंशन था, वेक्टर में भी एक ही डायमेंशन था। तो पहला डायमेंशन जो होता है, यदि हम इसमें लिखेंगे कॉमा के पहले, तो वो रो नंबर होगा, कॉमा के बाद कॉलम नंबर होगा। तो रो नंबर कितनी है बेटा 99 के लिए? कौन सी रो है? 2 सेकंड रो है, तो मैं 2 लिखूंगा। कॉलम कौन सा है? 2 सेकंड। हो गया बेटा? हम्म। अब मान लो मुझे एक पूरी रो सिलेक्ट करना है, फर्स्ट रो मुझे पूरी चाहिए, क्या लिखूंगा? पूरी फर्स्ट रो चाहिए बेटा। 1 कॉमा और 1 कॉमा 1 1 कॉमा ही लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, है ना? ओके ये समझ में? यस सर कॉमा के बाद ब्लैंक छोड़ देंगे तो पूरे कॉलम ले लेगा। ब्लैंक का मतलब होता है सभी ले लेना, जितना पड़ा है सब उठा लेगा। ठीक है, ओके हाँ उसमें कुछ स्पेसिफाई करेंगे। मान लो आपको 21 और 58 चाहिए था, क्या चाहिए था? 21 and 21। 58 तो आप फिर ले आपको लिखना पड़ेगा कंबाइन करके, क्योंकि दो चाहिए, है ना? 2 and 3, 2, 3। ओके, या मान लो 2:3 भी लिख सकते तो डायरेक्ट, है ना, क्योंकि कंटिन्यू थे। पर हाँ, यदि आपको फर्स्ट रो में 34 और 58 चाहिए तो 1, 3 ही लिखना पड़ता। गॉट इट? तो देखिए 21, 58 मिला। गॉट इट? yes sir अब मान लीजिए मैं एक बड़ा मैट्रिक्स बनाता हूँ, थोड़े से आइटम बढ़ाता हूँ इसमें। ओके, अब 9 आइटम हो गए बेटा, 3 बढ़ा दिए मैंने। अब ये 9 आइटम से 3x3 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ओके, और डायमेंशंस भी बढ़ाना पड़ेंगे मुझे, R3 भी करना पड़ेगा ना, R2 ही था, अब 3x3 का है। तो तो वहाँ पे देखिए, n रो के आगे 32 आ रहा है। ओहो वही गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए यार। बन गया 3x3 का मैट्रिक्स। yes sir अब मुझे बेटा इसमें चाहिए 34, 58, 12 और 37। क्या चाहिए? 34, 58, 12 और 37। क्या करेंगे?
1 comma C 34, 58, 12 और 37। तो कौन कौन सी रो हो रही हैं? R1 और R3। R1 R3 मतलब फर्स्ट और थर्ड, है ना? दो रो हो रही हैं, तो हम कंबाइन करके लिखेंगे रो नंबर पहले 1, 3। ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब कॉलम कौन कौन से चाहिए? 1 1 and 3. 3। यहाँ भी 1 3 चाहिए। Got it? हो गया, सब मैट्रिक्स बना लिया हमने। सर लेकिन अगर अपन को C2 चाहिए हो C2 और मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने R1 और R3 लिया, हम्म तो सपोज अपन को रो 1 चाहिए हम्म और रो 2 चाहिए, C1 और C3 चाहिए रो 1 रो 2 कर दो। और C1 और C3 चाहिए C1 C3 तो है, ये 1 और 3 और सर C2 भी चाहिए, तो अच्छा एक और ऐड कर देंगे बस। डेकोरेट कर देंगे, हो गया। है ना? C1 C2 C3 तीनों यदि चाहिए तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम्म, Got it? तीनों ही चाहिए तो पूरे पूरे चाहिए आपको, तो yes फिर sir, आपको कॉमा करके ब्लैंक छोड़ दो। अंडरस्टैंड? yes sir, तो आपको ये समझ में आया कि हम एक्सिस कैसे करेंगे? yes sir, Yes, sir. रो और कॉलम की नेमिंग समझ में आ गई आपको, है ना? Yes, sir. अब हम जो नेक्स्ट सेशन होगा सैटरडे, उसमें हम देखेंगे इनके ऑपरेशंस, है ना? मैट्रिक्स में okay, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। और मैट्रिक्स के बाद हम लोग अरे भी कंप्लीट करेंगे परसों, ठीक है? yes sir, और थ्योरेटिकल अपना मेजर ऑफ डिस्पर्सन तो हो गया। कल अपन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ये शेप फिगर्स जो होते हैं उससे कैसे पता करेंगे डेटा स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, वो अपन देखेंगे, है ना? तो आप लोग भी जो है घर में 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, है ना? yes sir, Yes, sir. अपने खुद मैट्रिक्स बनाएं और खुद से करें, क्या समझे? yes sir, खुद से करें, मतलब मेरी तो स्क्रिप्ट Yes, मैं sir. आपको भेज ही रहा हूँ, वो अपनी जगह है, पर आप खुद भी अपने दिमाग से, भाई मैंने 3x3 का बनाया, 3x4 का बनाओ, 4x4 का बनाओ, 2x2 का बनाओ, 2x3, 3x2, है ना? भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमें पता चलता है कौन कौन से मैट्रिक्स बनेंगे। यदि मान लीजिए 6 एलिमेंट्स हैं तो एक तो 1/6 बनेगा, 1 रो 6 कॉलम। yes sir, फिर 6x1 बन सकता है, जो बनेगा yes, उसका तो उल्टा भी बन सकता है ना। फिर yes sir, 2x3 और 3x2, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। 4 मैट्रिक्स बनेंगे, सब 4 तरह के बन सकते हैं। हाँ, यदि 9 एलिमेंट्स हैं तो एक ही बनेगा 3x3, और कुछ बन ही नहीं सकता स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा। बन सकता है 3x3, 9 एलिमेंट्स है तो 3x3 होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1/9 1 होगा by या 9 9/1 9 by होगा, 1, बस यही होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता। ये तो बेस मैट्रिक्स है, कॉलम है, रो मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको, है ना? तो यदि 16 एलिमेंट्स हुए तो 1/16, 2/8, है ना? फिर आपका 3 से नहीं होता है, 16 डिवाइड, 4/4, है ना? इस प्रकार से मैट्रिक्स बनते चले जाएंगे उसके। तो ये अपन को समझ में आता है, तो आप अलग अलग मैट्रिक्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अलग अलग वेक्टर्स बनाए, लिस्ट पे बहुत काम करिए, है ना? yes, लिस्ट को समझने में टाइम लगता है, तो लिस्ट और मैट्रिक्स पे आपको काम करना है आज और कल। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते रहे, क्योंकि अब मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा चीजें, yes sir, है ना? तो आपको, क्योंकि ये जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं सीधा असाइनमेंट पटक दूंगा उनको, असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है? चैप्टर yes वाला sir, Yes, sir. जैसे ही अपना ईडीए कंप्लीट, यूनिवेरिएट एनालिसिस ये सब कंप्लीट होगा, मैं सीधे प्रोजेक्ट दे दूंगा। और 5 प्रोजेक्ट रहेंगे, पहला प्रोजेक्ट आपको देना है, सॉल्व कर देना मुझे, दूसरा देना है, तीसरा देना है, चौथा देना है, 5 प्रोजेक्ट एक के बाद एक, ठीक है? yes sir, जब आप, क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू बी, क्या आप यदि कल को कोई इंटरव्यू देते हैं
तो आपका प्लेसमेंट हो। Yes, sir. तो परफेक्शन चाहिए। हाँ, यदि मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती तो मैं रेकमेंड कर पाऊंगा, है ना। वो आपको पोजीशन बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। रेकमेंड आदमी उसी को करेगा जिस पे भरोसा, है ना। मैं आपको कहीं रेकमेंड कर दूं किसी कंपनी में, है ना, और आपने काम नहीं किया, आपको आता नहीं है, 2 महीने बाद वो आपको किक आउट कर देंगे। नाम किसका खराब हुआ, दोनों का, है ना। मेनली आपका। अब मैं एक और कैंडिडेट भेजता हूँ उनके पास, क्या वो सीरियसली लेंगे? नहीं। नहीं लेंगे। इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको असिस्ट करूंगा, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको डिफरेंट जगह इंटरव्यूज के लिए असिस्ट करूंगा कि यहाँ इंटरव्यू दो, यहाँ इंटरव्यू, यहाँ इंटरव्यू चाहूंगा, और चाहूंगा, दिल से चाहूंगा आपका रिजेक्शन हो। रिजेक्शन होगा तो आप सीखोगे क्यों रिजेक्ट हुए, भाई फलानी फलानी चीज पूछ ली थी, नहीं मालूम था, है ना। तभी होता है ना रिजेक्शन, टेक्निकल राउंड। तो आप उस चीज को सीखोगे ना। रिजेक्शन से घबराना नहीं है, रिजेक्शन आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाता है ना। ध्यान Yes, sir. रखिएगा, हमेशा रिजेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। आप कोई भी हो, चाहे बिल गेट्स हो, कोई भी हो, ये सब रिजेक्ट हुए तब जितने सक्सेस हुए, है ना। अमिताभ बच्चन रेडियो के लिए इंटरव्यू दिया, आकाशवाणी के लिए, रिजेक्ट कर दिया, कैसा आपकी आवाज बेकार है, और फिर बाद में दुनिया उसी आवाज की दीवानी। समझ रहे हो? तो कई बार रिजेक्शन आपको काफी, रिजेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। तो एक दो इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है तो आपको सीखने को मिलता है। देखिए आप फ्रेश कभी इंटरव्यू दे रहे तो आपको भी नहीं मालूम, हाँ बाय चांस लक है, लग गए। पर जब रिजेक्शन होता है हमें पता चलता है ये हम में कमी है, ये नॉलेज की हमारे पास कमी है। फिर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, इसको पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तो दो चीजें और कुछ भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं आप, तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन होता है आपको उसमें, है ना। Yes, sir. इस प्रकार से। और अब जो जमाना है बेटा वो नहीं है कि पहले एक बार डिग्री हो गई, पीजी हो गई, उसके बाद हाँ फिर नहीं पढ़ना जीवन नहीं सर, में, अब अब नहीं तो है ऐसा। अपडेट रहना पड़ता है। अब तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास भी जो लोग आते हैं अपग्रेड में पढ़ने, वो मुझसे भी एज में बड़े हैं, कहीं 55 ईयर्स, 56 ईयर्स, 57 ईयर्स, मतलब इस एज में भी पढ़ रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए फीस दे के पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं जॉब नहीं है उनका, अच्छे जॉब है, अच्छी पोस्ट पे है, आईबीएम में है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई बड़ी जगह में मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक्सिलरेट कर रहे हैं। उनको फायर मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें ट्रांजिट करना है किसी दूसरे उसमें, क्या, ओके। या उनको एक्सिलरेट करना है, एक्सिलरेट के लिए भी नहीं आ रहे लोग, आ रहे हैं प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के लिए। क्या चाहिए अब उनको, क्योंकि उनके यहाँ वो डिपार्टमेंट चालू हो गया डेटा साइंस, और वो तो हाई पोस्ट पे है, उन्हें तो कुछ लेना देना नहीं उस डिपार्टमेंट से इतना डायरेक्ट, है ना। पर उनके अंडर में डिपार्टमेंट, तो वो अपने आप का प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि यार मैं इन लोगों से काम तभी ले पाऊंगा ना जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा, इस फील्ड में का कुछ नॉलेज होगा कि नहीं। यस सर। इसलिए वो अपने पैसे लगा के, खुद के, कंपनी का नहीं, कंपनी पे नहीं कर रही, खुद के पैसे 2.5-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगा के वो चीज सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए महीना है, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ज्यादा ही है इससे भी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई 1 महीने की सैलरी गई, 15 दिन की सैलरी गई, ठीक है यार ये कोर्स तो कर लेंगे, पर साल भर का, 6 महीने, साल भर का, जो भी कोर्स ड्यूरेशन, ये चीज। तो अपडेट आपको रखना पड़ेगा अपने आप को, है ना। Yes, यस sir. खूब खूब लर्निंग करो बेटा, पढ़ने की आदत, पीडीएफ भी, ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देख के सीखना है, पीडीएफ भी डाउनलोड करो, उसको रीड करो, रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोग सोचते हैं यार वीडियो देख लेंगे आ जाएगा सब कुछ, नहीं नहीं, वीडियो में जो बता रहा है वो सब कुछ थोड़ी होगा, जो राइटिंग में होगा, कोई रिसर्च पेपर है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ बुक्स हैं,
वहां जो डिटेल ऑथर जो लिखता है, जो एक्सपर्ट लिखता है, वो अलग बात होती है। वीडियो तो हर कोई बना देता है, एरा गेरा है। सही है, Yes, sir. वीडियो तो कोई भी बना दे। भाई दो दो सिंटेक्स सीख गया पाइथन के, अपने आप को डेटा साइंटिस्ट कहने लगते लोग क्या। एक आध एल्गोरिथम सीख गए मशीन लर्निंग की, कहने लगे भैया मैं तो डेटा साइंटिस्ट हूँ। और जब इंटरव्यू पे आते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है कितने पानी में हो। ठीक है बेटा, आज के लिए ओके। Thank you, sir. ओके Okay, श्रेया, sir. थैंक यू। श्रेया, रियाज, थैंक यू। Okay, sir. है ना, Thank you. प्रैक्टिस करिए। आज में ये सब अभी थोड़ी देर से Yes, आपको sir. ड्राइव के लिंक मिल जाएंगे, है ना। Yes, sir. ठीक। So what is the biggest dharma? The biggest dharma is the swadharma, and that is to find out what is your potential, to find out what is that point at which you achieve self-actualization, and then to make sure that you actually achieve it. Paulo Coelho wrote a book, Alchemist, which I'm sure many of my young friends would have read. It's not a deeply philosophical book, but it's got its own pearls of wisdom. And
चाय चाय दे रही हूँ। मेरी तबीयत कैसी तो ठीक। तो चीले बना लो मिनट। हाँ आज तो बनेंगे ही। हाँ? आज तो बनेंगे, उससे प्याज मिर्ची कटोगी। जी नहीं, आज गुरुवार है, बेसन का खाना इसलिए बन रहा। और प्याज मिर्ची में डालती नहीं हूँ। मिर्ची डालते चीले में नहीं। डालती हूँ। ठीक है।
चाय दो बे। अरे प्रभु दीनानाथ, थोड़ी सी वो सेव पड़ी देना, टोस्ट भी लाने। कौन सी वाली सेव बोल रहे थे? हम्म, क्या वो कौन सी सेव? हैं? क्या? सेव है क्या? नहीं होगी वो